عمران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے۔ جدید ریاستوں میں رائج جمہوریت کے سراسر برعکس ہے۔ عمران خان کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے، چاہے اس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ گزشتہ 4 برسوں کی بد انتظامی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ہم سیاست نہیں، ریاست بچانے آئے ہیں۔ اسمبلیاں قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق۔ عمران خان ماضی کا قصہ بن چکے، خوش فہمی کا شکار ہیں کہ اسمبلیاں توڑ کر دوبارہ جیت جائیں گے۔ آئندہ انتخابات میں جیت مسلم لیگ نون کا مقدر ہوگی۔ سابقہ حکومت کے دور میں نیب کا سیاسی استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزراء سردار ایاز صادق اور رانا تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ عمران خان کے جھوٹ اور بہتان کی سیاست مکمل بے نقاب ہو چکی۔ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا رسک نہیں لیں گے۔ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو صرف 2 صوبوں میں ہی الیکشن ہوں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر یوسف رضا گیلانی۔ بینائی سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خصوصی افراد کے لیے معاشرے میں سہولتیں بڑھانے اور انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ خصوصی افراد کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما سابق سینیٹر بیگم نجمہ حمید راولپنڈی میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں مسلم لیگ نون سمیت سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، کارکنوں اور بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی مرحومہ بیگم نجمہ حمید کے گھر آمد، صاحبزادوں سے تعزیت کا اظہار۔ وزیر خزانہ کا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور طاہرہ اورنگزیب سمیت دیگر اہل خانہ سے اظہار افسوس۔ مرحومہ کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ، داعش کی ذمہ داری قبول کرنے کے بارے میں رپورٹس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ۔ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی انتہا، 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج نے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا دی۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں روز کا معمول بن گئیں۔ گھروں میں توڑ پھوڑ اور خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ عالمی برادری انسانیت سوز مظالم رکوانے میں کردار ادا کرے۔ حریت کانفرنس۔ سندھ کا یوم ثقافت، کراچی سمیت صوبے بھر میں تقریبات، لوگوں کا سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر اپنی ثقافت سے محبت کا اظہار۔ وزیر اعظم کی عوام کو ثقافتی دن کے موقع پر مبارکباد۔ آج پاکستان میں وفاق کی اکائی سندھ کی خوبصورتی اجاگر کرنے کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستان کا ثقافتی تنوع اس کی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ ثقافت، آرٹ اور ادب کو فروغ دینا پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ نوجوان اپنی ثقافت کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں لوک میلہ ایوارڈز کا انعقاد۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے بہترین کوریج کرنے کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ 10 روزہ لوک میلے میں پاکستان کے تمام صوبوں کی ثقافت نمایاں۔ روس کی طرف سے یوکرین کے بنیادی ڈھانچے پر حملے جاری۔ بجلی کی تنصیبات پر حملوں سے یوکرین کے 500 سے زیادہ علاقے بجلی سے محروم۔ یوکرین کا کئی علاقوں پر دوبارہ قبضے کا دعویٰ۔ کورونا کا ہنگامی مرحلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ پابندیوں میں کمی سے وائرس کی نئی مہلک قسم سامنے آ سکتی ہے۔ 90% لوگوں میں کووڈ 19 کے خلاف مزاحمت پیدا ہو چکی۔ کمزور اور بزرگ افراد کے تحفظ پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے۔ عالمی ادارہ صحت۔
بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کا دشنام ترازی پر مبنی حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کا یہ بیان جدید ریاستوں میں رائج جمہوری نظام پر تمانچہ ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران خان کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے، چاہے اس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 4 سالہ بد انتظامی کے باعث اداروں کو چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ اتحادی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل جانیں گے محمد سفیان سے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ریلوے اور ہوابازی کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم اپنی سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں اور تحریک انصاف کے گزشتہ 4 برسوں کی بد انتظامی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں قانون سازی کرنے کے لیے بنتی ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ سے ملک نہیں چلتا، وہ بتائیں انہوں نے خود کیا کیا تھا؟ ان سے تو ایک ادارہ نہیں چل پایا۔ آئیں بیٹھ کے مناظرہ کریں نا میرے ساتھ، آپ اپنی لائیں وزراء کو جو ریلوے چلاتے رہے ہیں، ریلوے کے سپیلنگ آتے ہیں، پتہ ہے ریلوے ہوتی کیا ہے، چلتی کہاں سے یا رکتی کدھر آ کے، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ 300 لوکوموٹیوز تیار کرنے کے منصوبے کا آغاز ہم نے کیا، مگر پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونے کے باعث تحریک انصاف نے اس پر کوئی پیش رفت نہ کی اور ہمیں لوکوموٹیوز کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار کرنا پڑا۔ پہلی بار ہوا ہے اس ٹی او ٹی کے بعد اس قسم کی کوچز کے لیے ریلویز کو سی بی یوز لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ پاکستان میں بنے گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں ریلوے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مہربانی فرما کے، اب جب کہ آپ کو ٹی او ٹی بھی آ رہی ہے، اگلے چند ماہ میں ملے گا آپ کو ٹرانسفر ٹیکنالوجی، آپ کو کچھ مشینز بھی ملیں گی اس سلسلے میں جدید، اور آپ کی جو کیریج فیکٹری ہے وہ اپ گریڈ ہوگی، اس سے آپ کی بھی جو کرافٹ مین شپ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ چین کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت 56 کوچز پاکستان پہنچ گئی ہیں، جبکہ آئندہ کوچز کی تیاری پاکستان میں ہی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے کی ترقی کا سفر ہمیں دوبارہ صفر سے شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزراء ایاز صادق اور رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ عمران خان کی خوش فہمی ہے کہ وہ اسمبلی توڑ کر دوبارہ جیت جائیں گے۔ شرکپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اقتصادی امور ایاز صادق نے کہا کہ وزیر آباد واقعے پر جے آئی ٹی بنانے کے لیے حکومت نے سپریم کورٹ کو تحریری درخواست بھیج رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے ہی نامزد کردہ چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت کنٹیمپٹ کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے عمران کے خلاف۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برا بھلا کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جب آپ کی مرضی کا فیصلہ نہ آئے اور پھر جا کے کہیں کہ جی میں معذرت کر لیتا ہوں۔ الیکشن کمشنر بھی ان کی مرضی کا ہو، چیف جسٹس بھی ان کی مرضی کا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور چیف الیکشن کمشنر کا نام عمران خان صاحب نے خود دیا تھا، تو یہ اب ان کو متنازع بنانا، چونکہ وہ اصولوں پہ چل رہے ہیں، یہ غیر مناسب ہے اور نہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اور نہ اس طرح کوئی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کیس عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ عمران خان اب ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ کیس عدالتوں میں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف یقینی طور پہ جو فیصلہ آئے گا اور اس کو سزا ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی مجھے تو دوسری گنجائش نظر نہیں آتی۔ سابق وزیر اعظم سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عمران خان صرف جھوٹ اور بہتان کی سیاست کرتے رہے ہیں، جو اب مکمل ایکسپوز ہو چکا ہے۔ لودھرا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا رسک نہیں لیں گے۔ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں تو صرف 2 صوبوں میں ہی الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف کے ریٹائرڈ ہوتے ہی تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ اپنے ایک ٹویٹ میں عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ عمران نیازی جنرل باجوہ سے غیر آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد روکنے کا تقاضا کرتے رہے، جب انکار ہوا تو جھوٹے الزامات پر اتر آئے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ غیر آئینی مطالبے کے بدلے میں پرکشش پیشکش کی گئی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ علاج سے زیادہ احتیاط پر توجہ دے کر بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔
کراچی میں بابا فرید آئی کیم ٹرسٹ کی تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت 2 کروڑ سے زیادہ افراد ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں، احتیاط برت کر ہی لوگ اس مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ خصوصی افراد کے لیے معاشرے میں سہولیات بڑھانے اور انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ذہنی امراض کے سدباب کے لیے بھی اقدامات ناگزیر ہیں۔ 24% لوگ ایٹ دس ٹائم ٹوڈے آر انڈر مینٹل اسٹریس۔ کہیں جہاں ایکسیس مل جاتا ہے تو وہ کوئی ریلیکسیشن میڈیسنز لے لیتے ہیں، نہیں ملتا تو وہ گھر میں ہی پریشان ہوتے ہیں۔ کیا بات تھی بھائی، اس نے اپنی بیوی کو کیوں مار دیا جان سے؟ اس لیے مار دیا کہ لڑائی ہوتی تھی، پیسے کم آتے تھے۔ پیسہ واز ناٹ دی ایشو، از سم بڈی کہ کوئی ان کو گائیڈ کر دیتا کہ بھائی دیز آر دی آپشنز اینڈ اپارچونیٹیز۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر کریں۔ کیا ہے کہ جو کالج اسٹوڈنٹس گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مینٹل اسٹریس 60 to 80% آف کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر مینٹل اسٹریس۔ کیا کر رہے ہیں یار ہم؟ صرف پیسے کے پیچھے ہم نے اپنی چابی بھر دی اپنے بچوں کی کہ جاؤ بچہ لگ جاؤ۔ اب وہ اتنا تیزی سے بھگاتے ہیں کالج میں کہ وہ ساری عمر بھاگتے ہی رہتا ہے، اس کو چین ہی نہیں پڑتا نا، کیونکہ ماں باپ نے اور کالج نے کہا ہے پیسے بناؤ، ہے نا، ایٹ ایوری کاسٹ پیسے بناؤ، گھروں کی محبتیں ختم کر دو، لگ جاؤ پیسے کے پیچھے۔ یار واٹ اے ڈس بیلنس سوسائٹی۔ دنیا پہچانے نہ پہچانے، میں اور آپ تو پہچاننا شروع کریں نا اس بات کو۔ اینڈ ہاؤ مینی سائیکیٹرسٹ آر دیر؟ 450۔ 2 کروڑ سے زیادہ مینٹل اسٹریس کے لوگ ہیں، 450 سائیکیٹرسٹ۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور سابق سینیٹر بیگم نجمہ حمید کو راولپنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحومہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما طاہرہ اورنگزیب کی بہن تھیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ راولپنڈی میں بیگم نجمہ حمید کی نماز جنازہ میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ ظفر الحق، سابق گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا، سابق سینیٹر چودھری تنویر خان، سینئر لیگی رہنماؤں طلال چودھری، طارق فضل چودھری، انجم اکیل اور سابق چیئرمین سینٹ نیر حسین بخاری، زمرد خان سمیت عمائدین علاقہ و سیاسی شخصیات و کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پیدائشی مسلم لیگی کہلانے والی مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی سابق صدر نجمہ حمید جماعت میں ستون کی حیثیت رکھتی تھیں۔ وہ 2 مرتبہ مسلم لیگ نون کی سینیٹر رہیں۔ بیگم نجمہ حمید پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما، رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کی بڑی بہن اور موجودہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ تھیں۔ بیگم نجمہ حمید راولپنڈی میں پارٹی کی پہچان تھیں۔ جماعت میں ان کا ایسا ایک مقام تھا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے لے کر قائد محترم مریم نواز شریف سے ان کا ذاتی پیار اس لیے تھا، مریم نواز صاحبہ سمیت، کہ وہ ایک بڑی عظیم خاتون تھیں۔ اتنی مطلب پیاری خاتون تھی، اتنی ہمدرد خاتون تھی، جہاں بھی ملتی تھی وہ دست شفقت ہمارے سر پہ رکھتی تھی۔ لیڈیز ونگ کو انہوں نے بڑا متحرک کیا، وہ پورے پنجاب کی صدر بھی رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی طرح ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اچھی اور صاف ستھری سیاست کرے۔ ایک بہت بڑا نام ہے سیاست کے اندر ایک پولیٹیکل ورکر کا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری کوئی بڑی بہن ہم سے جدا ہو گئی ہو۔ پہلے دن سے جب سیاست شروع کی تھی تو آج دن تک وہ ایک ہی جگہ پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہی، اور آخر میں اسی طرح چلی گئی وہ دنیا سے۔ مرحومہ بیگم نجمہ حمید کی روح کے احسال ثواب کے لیے سوئم کی دعا سوموار دن 11:30 بجے مقامی ہال میں منعقد ہوگی۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما بیگم نجمہ حمید کے انتقال پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار مرحومہ نجمہ حمید کے گھر گئے۔ انہوں نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے ملک و قوم، جمہوریت اور پارٹی کے لیے خدمات پر بیگم نجمہ حمید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ بیگم نجمہ حمید کی سیاسی، جمہوری اور عوامی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر خزانہ نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ پاکستان نے افغان جہادی گروپ اسلامک اسٹیٹ خراسان کی کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بارے میں رپورٹ سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ افغان حکام سے مشاورت اور آزادانہ طور پر ان رپورٹس کی صداقت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دہشت گرد حملہ دہشت گردی کی وجہ سے افغانستان اور خطے میں امن و استحکام کو لاحق خطرے کی ایک اور یاد دہانی ہے۔ دہشت گردی کی اس لعنت کو شکست دینے کے لیے ہمیں اپنی تمام تر اجتماعی توانائیاں بھرپور عزم سے بروئے کار لانا ہوں گی۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔
मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने अफसोस का इजहार किया है कि भारतीय फौज मकबूजा इलाके के लोगों पर बदतरीन मजालिम ढा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुलाम अहमद गुलजार ने एक बयान में कहा कि मकबूजा वादी में तैनात 10 लाख भारतीय फौज गुज़श्ता 7 दहाइयों से जायद अरसे से इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ कर रहे हैं और उन्होंने महसूर कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के बाद से बेगुनाह कश्मीरियों पर भारतीय मुसालिम में कई गुना इजाफा हुआ है। भारतीय फौजियों ने श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, पुलवामा, पूंछ समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखीं। फौजियों ने रिहायशी मकानात में घुसकर खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा किया और घरेलू अशिया की तोड़फोड़ की। सियासी माहिरीन और तज्जियाकारों ने श्रीनगर में कहा है कि मोदी हुकूमत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी अपने बदनामे ज़माना तहकीकाती एजेंसीज को कश्मीरियों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। एजेंसियों के एहलकार भारतीय पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के हमरा मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, सहाफ़ियों और आम लोगों के घरों पर अक्सर छापे मारते हैं और मकीनों को हिरासा करते हैं। और नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात के अब तक मौसूल होने वाले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक ज़िला रावलाकोट में अपोजिशन जमातों ने मैदान मार लिया है। 22 वार्ड्स में जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे हैं, जबकि हुक्मरान जमात पीटीआई सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल कर सकी। इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम के मुताबिक 787 नशिस्तों में से 708 के नताइज मौसूल हो चुके हैं। मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ ने 229 नशिस्तें हासिल की हैं। आज़ाद उम्मीदवार 199 नशिस्तों के साथ दूसरे, मुस्लिम लीग नून 129 नशिस्तों के साथ तीसरे, जबकि पीपल्स पार्टी 104 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने 28, जमीयत उलमा इस्लाम ने 4, ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 4, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 7 और जमात इस्लामी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। सिंध के सकाफती दिन के मौके पर कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात हुईं। सिंध के गयूर वासियों ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंधी सकाफत के साथ मोहब्बत का इजहार किया। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। सिंध की सकाफत को दुनिया भर में उजागर करने और इस कदीम तहजीब के इक़दार को रोशनास कराने के लिए सूबे में मुख्तलिफ तकारीब हुई। सिंध सकाफती दिन के मौके पर गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के गवर्नर कामरान टिसूरी ने कहा कि सिंध की सरजमीन अपनी कदीम तहजीब और तमद्दुन के साथ मुख्तलिफ रंगों के रंग के साथ साथ अमन व मोहब्बत के सांचे में ढली हुई है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिंध कल्चर डे के मौके पर अपने पैगाम में कहा है, इस जबान से तहजीब और तमद्दुन के हजारों साल पुराने मोती जुड़े हुए हैं। कल्चर डे के मौके पर प्रेस क्लब कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाली रैलियां जमा हुई और सिंधी सकाफत से अपनी भरपूर मोहब्बत और वालेहाना जोश व जज्बे का इजहार किया। कल्चर डे हमारी सकाफत का दिन है और हम इसे जोश व खरोश के साथ मनाएंगे और हमें अपने सकाफत के दिन पे फख्र है। आज हमें खुशी महसूस हो रही है, हमारा ईद का दिन। आज का दिन जो है हम अपनी बहुत खुशियों के साथ मना रहे हैं और ईद की तरह जो हमें वो फीलिंग्स जो है हमारी ईद की तरह हैं। सिंधी सकाफत का दिन हम आज बहुत खुशियों से मना रहे हैं। सिंध टोपी अजरक दिन के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि सिंध की सकाफत सिंध और इस्लामी तहजीब का हसीन इम्तजाज है। सिंध सकाफती दिन के मौके पर जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोडिगर लोटिस और कराची में मुतय्यन अमरीकी कौंसल जनरल निकोल थ्रेट ने सिंध के तमाम वासियों को सकाफती दिन पर मुबारकबाद दी है। जर्मन कौंसल जनरल और अमरीकी कौंसल जनरल ने सिंध की सकाफत से अपनी यकजहती का इजहार किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध कल्चर डे के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि अमन, प्यार, मोहब्बत, इज्जत और भाईचारा सिंध की अजीम तहजीब रही है और सिंध ने अपनी तारीख और सकाफत को हमेशा मुकद्दम रखा है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी सिंध कल्चर डे के मौके पर खवातीन, बच्चों, नौजवानों और बूढ़े अफराद ने सिंधी अजरक टोपी के दिन को भरपूर अंदाज से मनाया और जश्न का समा रहा। जिला थरपारकर के तमाम शहरों और देहातों में भी सिंध के सकाफती दिन के मौके पर रैली निकाली गई। रैली में वजीर आजम के मामले खुसूसी MNA डॉक्टर महेश कुमार मल्लानी समेत मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा, तालिब उल्मों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिंध के दूसरे शहरों मटियारी, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में सिंधी टोपी अजरक का दिन मनाया गया। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध के अवाम को उनके सकाफती दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। सिंध के सकाफती दिन के मौके पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ारों बरस से सिंध की तहजीब न सिर्फ खित्ते बल्कि इंसानियत की तहजीब में अपनी सकाफत से खूबसूरती का रंग भरती आ रही है। उनका कहना था कि आज बाबुल इस्लाम सिंध का सकाफती दिन पाकिस्तान में विफाक की एक इकाई की खूबसूरती उजागर करने का दिन है। और नाज़रीन, सिंधी सकाफत और तहजीब दुनिया की कदीम तहजीबों में शुमार होती है। इस सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और इसे ज़िंदा रखने के साथ साथ इसे दुनिया भर में मुतारिफ कराने के लिए हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में सिंधी सकाफत का दिन मनाया जाता है। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। तहजीब और सकाफत हर कौम की कीमती मिरास मानी जाती हैं। हजारों साल से मखसूस तौर तरीके, पहनावे और रस्म रिवाज से एक कौम अपनी अलग पहचान बनाती है। तारीख का मुताला करें तो सिंध की तहजीब और सकाफत दुनिया की कदीम तरीन सकाफत तस्वुर की जाती है, जिसके निशान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलते हैं। इन खंडरात से पुराने दौर के लोगों के आलीशान रहन सहन और आला मनसूबा बंदी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। आज हम पूरे सिंध के वासी और सब मिलके अपने कल्चर डे को प्रेजेंट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हमारे इस रंगों में रंग जाएं। सिंध कल्चर डे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं और हर साल मतलब कि एक नया जोश होता है। तहजीब और सकाफत ही कौमों की असल पहचान होती हैं। जदीद दौर में जहां दुनिया सिकुड़कर एक ग्लोबल विलेज बन गई है, वहां अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए अपनी तहजीब और सकाफत के फरोग के साथ इसका तहफ़्फ़ुज़ भी निहायत जरूरी हो गया है। पूरी दुनिया को हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि सिंधी कौम मोहब्बत करने वाली है, पुरअमन कौम है। जितने भी सिंध की सिंधी भाई हैं, सबको, सिंधी बहनों को सिंधी सकाफती दिन मुबारक हो। हजारों साल से अजरक एक पहनावा नहीं बल्कि कदीम तहजीब से जुड़ी सिंध की शनाख्त है। इसके ताने बाने मोहनजोदड़ो के आसारों से मिलते हैं। हर साल सिंध समेत दुनिया भर में जहां सिंध से जुड़े लोग रहते हैं, वो इस दिन सिंधी अजरक और टोपी पहनकर अपनी पहचान और अपनी सिंधी सकाफत के रंगों को दुनिया से मुतारिफ करवाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये पैगाम देना है कि सिंध की धरती सकाफती विरसे से माला माल है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। लाहौर में यूथ जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिज़ा फातिमा ने कहा है कि नौजवान नस्ल को तालीम के साथ साथ तहकीक पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि वो जदीद दौर के तकाज़ों का मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए बैनुल-अक़वामी स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया है। रुकन कौमी असम्बली मूसा अली गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है, जिससे निपटने के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें तरक्की के मौक़े फराहम करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि माशरे से सिमती रवैयों की तश्कील के लिए माशरती अक़दार को फ़रोग़ देना ज़रूरी है ताकि औरतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कॉन्फ्रेंस से मुजीबुर रहमान शामी, बैरिस्टर आमिर हसन और दीगर मुक़र्ररीन ने भी खिताब किया और जमहूरियत में आला अक़दार के फ़रोग़, मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए ठोस हिकमत अमली इख्तियार करने और नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मुसावी मौक़े फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि कबायली अजला समेत सूबे के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए ठोस मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पेशावर में ज़िला मोहम्मद शबकदर, लकी मरवत, अपरदीर और पेशावर कंटोनमेंट के वफूद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं सूबे में स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए नाज़रा और तर्जुमे के साथ कुरान पाक की तालीम लाजमी कर दी गई है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया के सदर मुफ्ती तकी उस्मानी की क़यादत में उलमा के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बच्चे दीन की तरफ राग़िब होंगे तो एक कौम बनेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब तरमीमी बिल और यूनिवर्सिटी ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज़ बिल जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा। निजी सतह पर सूद के खात्मे और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए भी कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे में तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की है। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट आवाम को बेहतरीन शहरी खिदमात और तफरीही सहूलियात की फराहमी में अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आला ने कहा कि मनसूबे की बरवक्त तकमील हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने मनसूबे के तहत दरकार आलात और मशीनरी की खरीदारी के जारी अमल को
जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को दफातर में हाजिरी यकीनी बनाते हुए अपने हलकों में महीने में 2 मरतबा खुली कचहरी लगाने की हिदायत की है। एक बयान में वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी अफसरान अवामी मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए अपने इलाकों का दौरा करें और तफसीलात फौरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को इरसाल करें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने रियासत ओक्लाहोमा के गवर्नर से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ खुसूसन माशी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया। केविन स्टेट ने रियासत ओक्लाहोमा में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी खुसूसन पाकिस्तानी निज़ात डॉक्टर्स और दीगर पेशा वराना माहिरीन के किरदार को सराहा। सफ़ीर मसूद खान ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत माशी बुनियादों पर उस्तवार करने की अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने मारूफ तंजीम अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मैरीलैंड और वर्जीनिया बाब के सालाना गाला से खिताब करते हुए कहा है कि अमेरिका में तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स की मौजूदगी न सिर्फ मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है बल्कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत बंधन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करके वतन अजीज़ की तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और मुल्की सकाफत और कौमी विरसे के रंग लिए लोक मेला इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। कौमी सतह पर मेले की बेहतरीन कवरेज का अवार्ड पाकिस्तान टेलीविजन को दिया गया। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं यासिर हुसैन इस रिपोर्ट में। मुल्क की सकाफत और कौमी वर्से के सब रंग लिए कौमी सकाफती लोक मेला इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गया। अवार्ड्स की तकसीम की तकरीब लोक वर्सा ओपन एयर थिएटर में हुई, जिसमें दस्तकारों और फनकारों को नकद इनामात से नवाजा गया, जबकि तमाम सूबाई कल्चरल डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों को शील्ड्स भी दी गयी। कौमी सतह पर मेले की बेहतरीन कवरेज का अवार्ड रवां साल पाकिस्तान टेलीविजन को दिया गया। लोक वर्सा अवार्ड्स PTV न्यूज पर मेले की बेहतरीन रिपोर्टिंग के जरिए पाकिस्तान के वर्से, सकाफत और तारीख को उजागर करने पर PTV के नाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सकाफती वर्सा इंजीनियर अमीर मकाम की काबिशों और खुसूसी दिलचस्पी से मेले का कामयाब इनकाद मुमकिन हुआ। क्राउड का रिस्पॉन्स इज सो गुड, इतनी एनर्जेटिक अवाम यहाँ पर आई हुई है, चाहे पश्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, एवरीबडी इज एंजॉयिंग सो मच। 10 दिन तक ये सारे फूल, सारे रंग आए थे हर सूबे से, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, हर इलाके से आए थे और इन्होंने हमारी ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ घोल दी। एक अच्छी वो कोशिश है, हर साल गवर्नमेंट करती है और करना चाहिए, क्योंकि इससे ना लोगों का मोराल भी बूस्टअप होता है और इनकरेजमेंट होती है। इतने अच्छे ये लोग फंक्शन रखवाते हैं जिसकी वजह से सिर्फ हम आर्टिस्टों को नहीं, यहाँ में रहने वाले जितने लोग हैं सबके लिए एक खुशी का समा बन जाता है। अवार्ड की तकसीम के तकरीब के दौरान मारूफ फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और लोक गीत भी पेश किए। मेले में तमाम सूबों के इलाकाई रिवायती खानों और दस्तकारियों के स्टॉल्स लगाए गए थे, जबकि इलाकाई रक्स और म्यूजिकल शोज भी आवाम की तवज्जो का मरकज बने रहे। 10 रोज तक जारी रहने वाले कौमी सकाफती मेले में आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची में ख़त्म हो गई। आखिरी रोज़ मारूफ मिज़ाह निगार मुश्ताक यूसुफी के फ़न और शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। इल्म और अदब की फिक्री नशिस्त और दुनिया भर में उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ को मुतारिफ कराने वाली 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में दानिश्वर, मुसन्निफ, कालम निगार, ड्रामा निगार और शोराए कराम ने अपनी जहनी, अदबी और इल्मी सलाहियतों का मुजाहरा किया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में उर्दू फिक्शन, शायरी, गज़ल और मुख्तलिफ अदवार में होने वाली उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए किए गए इक़दामात पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। मशहूर शायर इफ्तिखार आरिफ और ज़हरा निगार ने मारूफ मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की यादें बातें के सेशन में उनकी मुख्तलिफ मज़ामीन और तहरीर पर गुफ्तगू की, जिससे हाज़रीन महफिल बेहद महजूज हुए। ये उर्दू कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी रही और बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, अच्छी बातें सुनने को मिली
तो इस शहर इब्तिला में अगर ये सब हो जाए तो क्या कहने, और अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में खुश व खुर्रम रखे। अदबी कॉन्फ्रेंस बड़ी ज़रूरी है और हम इस दौर में जो कुछ सीख लें वो गनीमत है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में नया मीडिया नए तकाजे के उन्वान से सहाफ़ी हजरात ने भी मीडिया इंडस्ट्री के नए रुझानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। जो हमारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनको देखा तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि यही इसका अचीवमेंट है कि हमारी नई नस्ल इसमें शामिल हो और हमारे बाद वो इस काफ़िले को आगे लेके बढ़े। और उर्दू अदब के बारे में सीखा, तनकीद निगारी का एक नया पहलू आज हमें पता चला। वो बातें जो आज तक हमने नहीं सुनी थी, उन बातों के बारे में हमें पता चला और बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आखिरी रोज कॉन्फ्रेंस में 21वीं सदी में सिंधी जबान और अदब का सेशन भी हुआ, जिसमें मजहर जमील, मदद अली सिंधी और दीगर शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में इफ्तिखार आरिफ की किताब सुखन इफ्तिखार की तकरीब रनमाई भी हुई। 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम तवानाइयों के साथ आज कराची में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें नई नस्ल को भी अपने शोरा और अदीबों के बारे में जानने का मौका मिला। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची के बाद अब रुख करेंगे लाहौर का, जहां मेडिकल के एक तालिब इल्म ने शोबा तिब में नई तारीख रकम कर दी है। होनहार तालिब इल्म ने दौरान तालीम 29 मेडल्स हासिल करके दूसरे तालिब इल्मों के लिए मिसाल कायम कर दी है। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। पाक सरजमीन जहां कुदरत के अनमोल खजानों से माला माल है, वहीं इसके नौजवान भी बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, जो सितारों पे कमन डालने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इकबाल का ऐसा ही शाहीन लाहौर का रहायशी वलीद मलिक है, जिसने अपनी खुदादाद सलाहियतों से कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। हाफिज वलीद मलिक MBBS की तालीम के दौरान 27 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल हासिल करके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने वाले डॉक्टर बन गए हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी हमारे बेसिक हेल्थ साइंसेज के होते हैं, एनाटमी हो गया, फिजियो हो गया, बायोकेमिस्ट्री है उसमें, और इसके अलावा ENT, आई मेडिसिन और फोरेंसिक्स, इन सब में मुख्तलिफ जो हैं उनमें मैंने डिस्टिंक्शन अचीव करने में हर एक ने रोल प्ले किया। कौम का ये अजीम बेटा अपनी कामयाबी अपने वालिदैन और उस्ताज़ा के नाम करता है। वो अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मुल्क और कौम की खिदमत करूं, अभी भी कर रहा हूं, और जो डॉक्टर मसीहा कहलाए जाते हैं उनकी जो पॉजिटिव एक इंटेंट है उसको बरकरार रखूँ। हाफिज वलीद तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इकबाल ने बिलाशुबा इन्हीं नौजवानों के मुतालिक कहा था, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, दूसरे कई शोबों की तरह रियल एस्टेट में भी पढ़े लिखे और काबिल अफराद की ज़रूरत है। इस सिम में ICMA की जानिब से रियल एस्टेट में डिग्री का इजरा यकीनन खुशाइन है। इसी हवाले से एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसकी तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। तक़सीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ सनतकार डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा कि तामीरात के शोबे से 70 से ज़ायद सनतें जुड़ी हुई होती हैं, जबकि ICMA और SMQ रियल्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इश्तिराक से तालिब इल्मों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक तालीम और डिग्री देने से मार्केट में मुसाबकत के साथ साथ मेयार भी बढ़ेगा। SMQ के मुंतजिम बिलाल तालिब ने कहा कि रियल एस्टेट की फील्ड में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के इस शोबे में आने से जदीद अंदाज में काम करने की सहूलियात मैसर आएंगी। दूसरे मुकर्ररीन ने भी तकरीब से खिताब किया, जबकि तालिब इल्मों ने भी इस शोबे में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को अमली ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहम करार दिया। नेचुरली ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज तालीम की ज़रूरत को बहुत ज़्यादा मुकदम रखा जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि उसका हुसूल और उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा माने रखती है इस वक्त तरक्की के लिए ख़ास तौर पर। रियल एस्टेट के हवाले से लोग काम तो करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती। तो ये एक ICMA ने SMQ ने एक प्रोग्राम अरेंज करवाया था। इसमें हमने काफ़ी अच्छे मॉड्यूल्स सीखे जो कि रियल्टर्स के लिए ज़रूरी हैं 21st सेंचुरी के हवाले से। बाद में फारिग तहसील तलबा और तालिबात में डिग्रियाँ तफवीज़ की गईं और उन्हें असनाद से नवाजा गया। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, लाहौर में स्मोग शहरियों के लिए रोग बन गया है। सूबाई दारुल हुकूमत को स्मोग ने एक बार फिर अपनी लपेट में ले लिया है। शदीद स्मोग के बायस शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। फिजाई आलूदगी ने लाहौर शहर में अपने डेरे जमा लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुसलसल 300 से ऊपर रहने लगा। बागों के शहर लाहौर के शहरी साफ फिजा में सांस लेने को तरस गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदा तरीन शहर करार,
شدید स्मॉग के बाइस शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुबतला होने लगे हैं। तभी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत करते हुए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे दिया है। लाहौर के शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जिनको सांस का मसला है, ख़ास तौर पर ये सांस वाले जो मरीज़ हैं उनको तो बहुत तंग करी है, और जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही नुकसान है। हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रही। ये बहुत कंसर्निंग बात तो है, आम शहरी के हवाले से भी और हमें अपने बच्चों की सेहत के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से। फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से घर वालों को या लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारी हुकूमत सो रही है, इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि वो कोई एक्शन ले। लाहौर शहर में कुछ मुकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर भी रिकॉर्ड किया गया है। शहर के अस्पतालों में स्मॉग से मुतासर अफराद का रश बढ़ता जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग में इजाफे का बाइस बनने वाले अवामिल की रोकथाम में नाकामी स्मॉग में रोज बरोज इजाफे का बाइस बनती जा रही है। शहरियों का कहना है कि स्मॉग खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि स्मॉग के तदारुक के लिए फौरी इक़दाम करे। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में खुसूसी अफराद के आलमी दिन के हवाले से पॉलिसी डायलॉग का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि जब तक रियासत और मुआशरे को खुसूसी अफराद के हवाले से एहसास नहीं होता, सिर्फ कानून साजी और इंतजामी इक़दामात नाकाफ़ी रहेंगे। तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वह खुसूसी अफराद की बहबूद के हवाले से इक़दामात को मंशूर का हिस्सा बनाएं। मुकर्रीन ने खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए मजबूत कानूनी और इंतजामी इक़दामात पर जोर दिया। स्कर्दू में भी खुसूसी अफराद के साथ हमदर्दी और हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर और दूसरे मुकर्रीन ने इलाके में खुसूसी अफराद को हुकूक देने पर जोर दिया। इस मौके पर खुसूसी अफराद ने स्टॉल सजाकर सकाफती अशिया की नुमाइश का भी इनेकाद किया। खुसूसी बच्चों ने नात, नज़्म और टेबलो समेत रक्स भी पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों ने स्टॉल्स का दौरा किया और खुसूसी अफराद ने शील्ड्स और नकद इनामात तकसीम किए। इस्लामाबाद में ख़वातीन के निजी कॉलेज की होनहार तालिबात को फेडरल बोर्ड और कैम्ब्रिज में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर इनामात दिए गए। इस मौके पर मुकर्रीन ने तालिबात की हौसला अफजाई की और कॉलेज के मुनफरिद निज़ाम तालीम को सराहा। उनका कहना था कि बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत से उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। शाहराए कागान पर मुलकंडी के करीब सड़क पर जख्मी चीते को रेस्क्यू कर लिया गया है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्काम को सड़क किनारे एक जख्मी चीता नजर आया जो कोशिश के बावजूद भाग ना सका। महकमा वाइल्ड लाइफ के मकामी हुक्काम ने जख्मी चीते को पकड़कर तिब्बी इमदाद के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। मौसम है सर्दियों का, तो बात कर लेते हैं खुश्क मेवों की। कोयटा की खुश्क मेवों की मार्केट का शुमार मुल्क की सबसे बड़ी मार्केट्स में होता है। महंगाई की वजह से खुश्क फ्रूट्स की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया है। चलगोजे की आसमान से बातें करती कीमत पर लोग सिर्फ इस फल को देखने या फिर इसकी कीमत पूछने तक ही महदूद होकर रह गए हैं। तफसील बता रही हैं जुलेखा खान। ये है कोयटा की ड्राई फ्रूट मार्केट, जहाँ पहले चलगोजों के ढेर हुआ करते थे। शेरानी जंगलात में आग लगने के बाद जैसे चलगोजों की कीमत को भी आग लग गई। एक साल पहले तक कोयटा में चलगोजे 3000 रुपए किलो मिल जाते थे, लेकिन अब ये 9500 में भी बमुश्किल दस्तयाब है। गरीब तो क्या मिडिल क्लास भी अब इसे खरीदने का तस्वुर नहीं कर सकती। चलगोजे जो है 1000 रुपए ज्यादा महंगे हो गए पिछले साल से, बल्कि 10% क्या आप ऐसे समझे 100 गुना से भी ज्यादा महंगाई होगी। ताजरों का कहना है कि चलगोजे 9/11 के बाद महंगा होना शुरू हुए। तोरा बोरा अफगानिस्तान में पैदावार अब 30% भी नहीं रही, और जो है इसका ज्यादातर हिस्सा चीन और मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट होता है। चलगोजे की टोटल मसलन पैदावार है वो थोड़ी सी कम है, डिमांड के लिहाज से कम है। इस वजह से हर साल इसकी कीमत अक्सर और बेशतर महंगी ही होती है। चलगोजे की कीमत अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो शायद आइंदा नस्लें तस्वीरों से ही जान सकें कि कोई खुश्क मेवा चलगोजा भी था। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, कोयटा। और नाज़रीन, 13वीं विंटेज एंड क्लासिक कार रैली पेशावर में खत्म हो गई है। इस मौके पर पुरानी और क्लासिक गाड़ियों की नुमाइश भी हुई। तफसील से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद अहमद खान। सवाबी से शुरू होने वाली विंटेज एंड क्लासिक कार रैली लंडी कोतल और तारीखी दर्रा खैबर की सैर करने के बाद पेशावर में इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में हिस्सा लेने वाले पुराने मॉडल की गाड़ियों को सर्विसेज क्लब पेशावर में नुमाइश के लिए पेश किया गया। नुमाइश में 1930 से 1970 मॉडल तक की मर्सिडीज, फोर्ड, शेवरले, बॉयक और वॉक्सवैगन के अलावा वेस्पा स्कूटर्स भी पेश की गई थी।
पुरानी और क्लासिक गाड़ियों की नुमाइश देखने मुख्तलिफ उम्र के अफराद आए थे। मैं पुरानी गाड़ियों का शौक़ रखते हैं हम लोग, तो बड़ी ये एक फुलफिलिंग फीलिंग होती है। आप जब अपनी एक शौक़ को पूरा करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप मेहनत करते हैं, तो उसका जब फल मिलता है उसमें एक अजीब सी खुशी मिलती है। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, हमें नई नई गाड़ियाँ देखने को मिली। हमारी ये क्लासिक कार रैली हर साल होती है। अक्सर हम कराची से खैबर तक जाते हैं, लेकिन इस साल हम लोग इस्लामाबाद से खैबर तक आए। मुंतज़मीन का कहना था कि विंटेज एंड क्लासिक कार रैली के इनेकाद का मकसद पुरानी गाड़ी रखने के शौकीन अफराद की हौसला अफजाई के साथ साथ तफरीह के मौके पैदा करना है। इसके मुनक़्क़िद करने का मकसद यही था कि हम आवाम को ये पता चल सके कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन है, मस्जिद एरिया में अमन है। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे लिए ये एक्सपो फ्रॉम पेशावर टू लंडी कोतल एंड नाउ बैक टू पेशावर क्लब, ये बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जेटिक और एक अच्छी एक्टिविटी थी। नुमाइश में रवायती मौसीकी और खटक डांस का भी एहतमाम किया गया था। विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का इनेकाद हर साल पेशावर और खैबर में किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान भर से गाड़ियों के शौकीन बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना का हंगामी मरहला अभी ख़त्म नहीं हुआ। एहतियाती तदाबीर और पाबंदियों में कमी के बाद वायरस की नई मोहलिक किस्म सामने आ सकती है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहेनॉम ने जिनेवा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 90% लोगों में कोविड-19 के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो चुकी है। उन्होंने मुतनब्बे करते हुए कहा कि इस वक्त भी इंतहाई मुतअद्दी वायरस की कम अज़ कम 500 दीगर किस्में गर्दिश में हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसीज का कहना है कि यूक्रेन में जंग अब सुस्त होती जा रही है। तवक्को है कि मौसम सरमा में जंग की रफ्तार मजीद सुस्त रहेगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर एवरल हेंस ने कहा है कि यूक्रेन की तरफ से भी मुज़ाहमत कम नहीं हो रही। उनका कहना था कि रूस के सदर इस बात से ज़रूर परेशान होंगे कि उनकी फ़ौज यूक्रेन जंग में मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकी। रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया था, इसमें से बेशतर पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। और नाज़रीन, आज दुनिया के मुअम्मर तरीन कछुए की सालगिरह मनाई गई। फ्रांसीसी बादशाहत के दौर में पैदा होने वाला दुनिया का मुअम्मर तरीन कछुआ 190 साल का हो गया है। जोनाथन नामी कछुआ फ्रांसीसी बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट की हलाकत के बाद पैदा हुआ था। 1832 में पैदा होने वाले कछुए को 50 साल बाद बरतानिया लाया गया, जहां अब वो सेंट हेलेनिया के गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह में मज़े से रिटायरमेंट की ज़िंदगी बसर कर रहा है। कछुए की सालगिरह के मौके पर खुसूसी डाक टिकट भी जारी किया गया है। जोनाथन की सालगिरह का केक उसके पसंदीदा खुराक से बने केक के साथ मनाई गई, जिसमें गाजर, सलाद के पत्ते, सेब और नाशपाती शामिल हैं। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कतीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जिस्मी तौर पर अबरआलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के बाद मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -8, ज़ियारत, स्कर्दू -5, कल्लात, कालाम और गोपस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 4, लाहौर 11, कराची 12, पेशावर 5, कोयटा 0, गिलगित -1 और मुजफ्फराबाद में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।